So the things are clear now, na? What is the formula? What is RW1? What is RW2? So QF is equal to CNC plus gamma 1. Gamma 1, gamma 2, I will tell you how to take. D and Q, RW1 and RW2. Two new terms are there. RW1 is given by 0.5 into 1 plus ZW1 by D. And RW2 is given by 0.5 into 1 plus 0.5 into 1 plus ZW by B. This is D, this is B. What is ZW1? ZW1 is the height of water table from the measured from the ground level. ZW1 is the that is the depth of water table measured from the ground level, whereas ZW2 is the depth of the water table measured from the base of the footing. Measured from the base of the footing. So this is RW1, RW2, and what happens when ZW1 is 0, when ZW1 is D, all these things also I told you. This is generally asked in the MCQs. This is generally asked in the MCQs. I hope now the formula is very much clear to you. Now we will go problem in detail. One problem we will take, and we will take all the cases. We will take all the cases there. Okay. So now this is the question. This is the question. अभी थोड़ा वेट करेंगे 2 मिनट, अभी आते जा रहे बच्चे. क्वेश्चन यहाँ पर है, स्क्रीन पर लिख लो आप, अगर से हो गए तो डाटा वाटा कुछ तो लिख लो जब सब लोग ज्वाइन होने तक. दिस इज द क्वेश्चन. A strip footing 2 meter wide. A strip footing is there, 2 meter wide means B is 2 meter. Carries a load intensity of 400 kilonewton per meter square at a depth of 1.2 meter in sand. What is this 400? I will tell you. Depth is 1.2 meter, width is 2 meter. It is a strip footing. The saturated unit weight of sand is 19.5. When the sand is saturated, its unit weight is 19.5. Remember here we are using sand, and unit weight above water table means dry portion is 16.8 kilonewton per meter cube. It should be not square, it should be cube. The shear strength parameters are C equal to 0. When C equal to 0 means it is pure sand, and phi is equal to 35 degrees. C is equal to 0 and phi is equal to 35 degrees. Determine the factor of safety with respect to shear failure for the following cases of location of water table. So take down the given data. Different cases are there. When all the cases I will do, all the 5 cases. First case मैं आपको explain करता हूँ. When water table is 4 meter below the ground level. And the water table is 4 meter below the ground level. What happens when the water table is below the 4 meter below the ground level? You have to find factor of safety. You have to find the factor of safety. Once again, I will remind the things. If you haven't written the problem, at least take the data, be with pen and paper, then only you can understand. अगर से आप चुप सुन के भाषण सुने ऐसा सुने तो नहीं आता. आपको पेन और नोटबुक लेके बैठना पड़ता, तभी करे तो कुछ समझ में आता, नहीं तो नहीं आता. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज स्ट्रिप फुटिंग. स्ट्रिप फुटिंग है. ओके, इट इज स्ट्रिप फुटिंग. जनरल फॉर्मूला, width is 2 meter means B is 2 meter, depth is 1.2 meter. Okay, D is 1.2 meter. 19.5 is gamma saturation, 16.8 is gamma dry. Shear strength parameter C is 35, 35. Phi is 35 means it is general shear failure as phi is greater than 28 degrees. Phi is greater than 28 degrees.
Determine the factor of safety with respect to shear failure for the following cases. So first I will take first case when water table is 4 meter below the ground level. Then one problem in with all cases I will explain you, rest of the things easily you can do. Water table is 4 meter below the ground level. Water table is 4 meter below the ground level. So now, first case I will tell you. See here, first of all, use this is the formula CNC gamma D and Q 0.5 RW1 into RW2. This is the formula. As here, C is 0. When C is 0 means this entire first term becomes 0. The formula becomes like this: gamma D NQ RW1 plus 0.5 B gamma N gamma RW2. As C is 0, first term becomes 0, and for 35 degrees, NQ is this much, N gamma is this much. So the formula, if you substitute all these things, it will becomes like this: 49.68 gamma RW1, 42.3 gamma RW2. After all simplifications, directly also you can do. So now you have to find what is RW1, what is RW2. Now this is the general. Water table is at 4 meter below ground level. First case. First case में क्या है? Water table कितना है? Ground level से 4 मीटर नीचे है. तो ये है आपका ground level और यहां से ये 4 मीटर है और इसका फुटिंग का विड्थ कितना है? 2 मीटर. फुटिंग का डेप्थ कितना है? 1.2 मीटर. अच्छा ये बोलो मुझे, जब ये ग्राउंड लेवल से 4 मीटर है, फुटिंग से कितना है? क्योंकि फुटिंग का डेप्थ 1.2 मीटर है, फुटिंग से 2.8 मीटर है. फुटिंग से क्या है? 2.8 मीटर है. अब हम क्या बोले थे, वाटर टेबल इफेक्ट कब करता? अगर से डेप्थ ऑफ फुटिंग देखिए, वाटर टेबल इफेक्ट कब करता? जब डेप्थ ऑफ वाटर टेबल जो है वो विड्थ ऑफ फुटिंग के बराबर रहना. तो यहां पर हमारा 2.8 मीटर है और विड्थ ऑफ फुटिंग 2 मीटर है, मतलब 2 मीटर से ज्यादा पे वाटर टेबल है. तो यहां पर इस केस में वाटर टेबल का कोई भी इफेक्ट नहीं होता. यहां पर वाटर टेबल का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि देखिए ZW1 ग्राउंड लेवल से लेंगे तो 4 मीटर आता और ZW2 लेंगे 2.8 मीटर आता. तो RW1 भी 1 हो जाता, RW2 भी 1 हो जाता और इसमें आप RW1 और RW2 में सब्स्टिट्यूट करो. गामा भी, क्योंकि पानी बहुत नीचे है, पूरा ड्राई आपको लेना है. ड्राई यू टेक ड्राई वन. सो 49.68 इंटू whatever it is gamma dry 16.8 into 1 plus 42.3 into 16.8 into 1. Substitute karo, simplify karo. So whatever the things you will get is QF is equal to 1540. safe bearing capacity kitna aata aapko? 1546.9 kilonewton per meter square. बट एक्चुअल फुटिंग का लोड कितना है? 400 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है. तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू QF बाय QA. QF is 1546.9, QA 400 दिया, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हियर इज 3.87. इट इज 3.87. आपको क्लियर हुआ क्या यहां तक? हर चीज मुझे पूछो, कुछ डाउट है तो चैट बॉक्स में पूछो प्लीज. आई विल एक्सप्लेन द थिंग्स. आपको प्रॉब्लम पूरा अच्छी तरह समझ में आया तो ये आगे समझ में आते. यहां पर वाटर टेबल का कोई इफेक्ट नहीं है, पूरा जैसा ड्राई केस में हम करे थे वैसा ही किए. तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 3.87. प्लीज कुछ डाउट है तो पूछो. एक बार और यहां से खोलता हूं मैं. देखो ये बेसिक कैलकुलेशन करा, पहले ये देखो, आप लिख लो इसको, होना है तो 2 मिनट्स टाइम आई विल गिव.
इज इट ओके? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ू मैं? ये कैलकुलेशन कैसा किया? ये तो जनरली Rw1 Rw2 लेके फर्स्ट टर्म 0 इसलिए हुआ क्योंकि C 0 है, सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, D क्या है, गामा क्या है, सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो गामा सब्स्टिट्यूट नहीं किया मैं क्योंकि गामा सिचुएशन के हिसाब से आता, तो ये आया आपको सिंप्लीफिकेशन। हमारे इस केस में जो कि बहुत डेप्थ पे है वाटर टेबल, तो Rw1 भी 1 बनता, Rw2 भी 1 बनता, दोनों 1 होने से गामा ड्राई का ले लो और सब्स्टिट्यूट करो 16.8 तो आपका QF आता 1546.9 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। And once you get QF, actual Q is, it is given 400 kilonewton per meter square. Factor of safety is given by QF by QA. Factor of safety is given by QF by QA. So 1546.9 divided by 400, this is going to be 3.87. This is going to be 3.87. This is for the first case. If still you are having any doubts, please, एक प्रॉब्लम आपको आया तो कल से आप फटाफट कर सकते, मैं डिटेल में जाके कर रहा हूं, हर केस ले रहा हूं। पहले केस में क्या लिया मैं, जबकि वाटर टेबल बहुत डीप है, वाटर टेबल इज टू डीप हियर। Water table is at greater depth. Water table is at greater depth. Water table is at greater depth. Clear the things? आगे बढ़ो. Hoping that the things are clear to you. Now I will go for second case. सेकेंड केस में ये कैलकुलेशन तो सेम वही रहता। अब यहां पर क्या है, गामा क्या ये यूज कर रहा फर्स्ट केस को और सेकेंड केस को, Rw1 कैसा निकालना और Rw2 कैसा निकालना, वो दैट वी विल लर्न फॉर द सेकेंड केस। अच्छा, सेकेंड केस क्या बोल रहा, वाटर टेबल इज 1.2 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल। वाटर टेबल इज 1.2 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल। Diagram once again, okay, diagram if you want to see Prajakta, see here. For the first case, the diagram is like this. This is the width of B is equal to 2 meter. Water table यहाँ पर है, ground level से 4 मीटर है और ग्राउंड मीटर से 2 मीटर है, तो बेस ऑफ द फुटिंग से कितना होता, टोटल 4 में से बेस ऑफ डेप्थ ऑफ द फुटिंग 1.2 मीटर निकालो, तो फुटिंग से 2.8 मीटर है, मतलब ZW1 4 मीटर है, ZW2 2.8 मीटर है, और दोनों भी Rw1 Rw2 आप फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके देखो, 1 से ज्यादा आते, जब भी 1 से ज्यादा आते हम लोग क्या लेते हैं, Rw1 एंड Rw2 एज 1। प्लीज आस्क एनीथिंग, कुछ डाउट है तो देखो, अच्छी तरह समझो। और मैं कल से अब आपका स्ट्रिक्ट एक्शन अटेंडेंस मुझे जरूरी है। अगर से आप इतना मेरे सर पे चढ़ के बैठ रहे, आप लोग आप क्या कर रहे, कौन से कोर्स कर रहे, पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे मुझे नहीं मालूम, यू हैव टू अटेंड द क्लास। एंड अगेन मोreover I am the CC, I am responsible also for all these things. If you are not attending my class, means how can you attend the other classes? So it means that you are not at all attending any classes. So please attend the class. मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूं, अदरवाइज यू विल सफर। पूरे मार्क्स आपके मेरे हाथ में, याद रखो, 0 डाल देता हूं, देखो। ओके, थिंग्स आर क्लियर। फर्स्ट केस क्लियर बेटा, everything is known to you. So factor of safety for the first case is 3.87. Now I will go second case. Second case में क्या बोल रहा, water table is just at the base of the footing. Clearly बोल रहा हूं, water table is 1.2 meter below ground level. 1.2 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल मतलब बेस पे है, यहां पर ही है, क्योंकि डेप्थ ऑफ फुटिंग भी 1.2 मीटर है ना, तो वाटर टेबल अब क्या है, बेस ऑफ द फुटिंग पर है, बेस ऑफ द फुटिंग पे है। बेस ऑफ द फुटिंग पे है तो हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, वी विल फाइंड आउट व्हाट इज Rw1 एंड व्हाट इज Rw2। वी विल फाइंड व्हाट इज Rw1 एंड व्हाट इज Rw2। देखिए, Rw1 इज गिवन बाय, फॉर्मूला है 0.5 into 1 plus ZW1 by D। ZW1 मतलब
डेप्थ ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। अच्छा, डेप्थ ऑफ वाटर ग्राउंड लेवल कितना है? 1.2 है। सो 0.5 इंटू 1 प्लस 1.2 बाय 1.2, क्योंकि ZW1 1.2 है, दिस गेट कैंसिल्स। सो RW1 इज 1। इवन 1 से भी ज्यादा आया तो आपको 1 ही लेना है। तो RW1 इज 1। अमृता डुबल इज आई थिंक एमटेक स्टूडेंट, नो? एनीवे आई डोंट नो, क्या कोई है अमृता दुबल भी आपके पास भी? Anyway, RW1 is 0.5 into 1 plus ZW1 by D. So 0.5 into 1 plus 1.2 by 1.2, this get cancels, 1 plus 1, 2, 2 into 0.5 is 1, therefore RW1 is 1. RW1 is 1. Okay, RV? Very good, RV did. Now RW2 is equal to, RW2 कैसा निकालते हैं हम? 0.5 into 1 plus ZW2 by D. ZW2 मतलब, ZW2 means depth of water level from the footing. पानी पूरा यहां तक है, फुटिंग तक, उसको कोई डेप्थ है क्या? फुटिंग से नहीं है। So ZW2 is 0. You put here 0, 0 by 1.2 is 0. So 0.5 into 1 is 0.5. So RW1 is 1, RW2 is 0.5. ये कैलकुलेशन आपको आया क्या? बोलो मुझे, तो मैं आपको समझाता हूं आगे। RW1 RW2 सेकेंड केस में मैं कैसा निकाला, बिल्कुल आराम से करो। आप भी नोटबुक लो, डायग्राम बनाओ, सोचो समझो। आई थिंक RVS डिड। खैर कोई आगे पढ़ रहा फास्ट हो गया तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन आप सब लोग करना, ये मुझे बहुत जरूरी है। RV I got 3.12 more than you. Please check once again. I can also be wrong. Sometimes I am also wrong. Don't think that I am always right. फिर भी चेक करो आप। तो RW1 आया 1, RW2 आया 0.5, सबको आगे बढ़ू मैं? हाँ, सो देखिए अब यहां पर दो टर्म्स है। अब गामा मैं कौन सा ले लूं? देखिए, सरचार्ज टर्म के लिए आप ट्राई ले लो, क्योंकि सरचार्ज जो है, पानी यहां पर है, यहां ऊपर आया क्या, और सरचार्ज यहां के मिट्टी से आता ना, और यहां का मिट्टी कैसा है? ड्राई है। लेकिन यहां का जो मिट्टी है वो पानी में भिगा हुआ है। समझ में आ रहा? इसीलिए आप यहां पर फॉर्मूले में इसको ड्राई ले लो। सरचार्ज के लिए लेते हैं ना हम सेकेंड टर्म, तो उसके लिए ड्राई ले लो, इसके लिए सबमर्ज्ड ले लो। तो अब आपका फॉर्मूला ऐसा बनता, QF is equal to 49.68 into gamma into RW1 plus 42.4 gamma saturated into RW2. So 49.68 into gamma is 16.8, it is dry. RW1 is 1, 42.4, here gamma saturated because it is in the water, 19.5, RW2 is 0.5. You simplify this, you will get QF is equal to 1248. Factor of safety is equal to QF by QA. 1248 by 400, this is going to be 3.12. This is going to be 3.12. ये आपको समझ में आया क्या? अच्छी तरह आराम से करो, गड़बड़ मत करो। मैं चाहता तो फटाफट सिलेबस खत्म कर सकता हूं, सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है मुझे। आई वॉन्ट समथिंग यू शुड लर्न। एक तो आपकी किस्मत खराब है, आपको अच्छी लग रही क्लासेस नहीं चल रही, आपकी किस्मत खराब है, आपको मजा आ रहा बहुत इसमें, बट यू आर लूजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। यस, एनीथिंग? 49.68 gamma RW1 plus 42.4 gamma saturation RW2. 49.68 into 16.8, that is the gamma dry इसीलिए लिया क्योंकि पानी यहां पर नहीं है। देखिए, पानी सरचार्ज कहां से आता है? इस मिट्टी से आता, जो फुटिंग के ऊपर और ग्राउंड लेवल के नीचे इधर है, और यहां पर ये सूखा है पूरा। जब ये पूरी तरह सूखा है तो गामा ड्राई आता सेकेंड केस में 16.8, लेकिन
थर्ड जो बनता ये वेज की वजह से, वेट के वेज की वजह से बनता, वो पानी में भीगा हुआ है, इसलिए गामा सैचुरेटेड शुड बी टेकन एज हियर 19.5। Rw1 तो 1 आयाम निकाले सो है, Rw2 0.5 है, तो QF इज इक्वल टू 1248 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू QF by QA, 1248 by 400, it is 3.12। RV, you check once again whether I am wrong or your answer is wrong. Or any mistake, I think you have made the mistake in taking gamma, I think. Please check it once again. Clear the thing? आगे बढ़ू मैं अब थर्ड केस के लिए। थर्ड केस में क्या बोलता हूं, वाटर टेबल इज एट 2.5 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल। अब फिगर बना लो रफ बगैर देखे। वाटर टेबल इज एट 2.5 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल, बिलो द ग्राउंड लेवल। बताऊं फिगर में अब आप बनाने के बाद देखो इधर, ये है फुटिंग, फुटिंग का डेप्थ 1.25 मीटर है, 1.2 है। वाटर लेवल जो है ग्राउंड लेवल से 2.5 पर है, ग्राउंड लेवल से 2.5 पर है ना, 2.5 मीटर पे। आज जरा का आप मोबाइल पे जरा बड़ा करके भी देख लो, आपके मोबाइल में छोटा दिखता, 2.5 मीटर है। तो बेस ऑफ द फुटिंग से कितना होता वाटर लेवल, 1.3 होता। तो अब मुझे ये बोलो यहां पर ZW1 क्या है, ZW2 क्या है, ये आपको समझ में आना। ZW2 means depth of water level from the ground. From the ground, the depth of water level is 2.5. So ZW1 is 2.5. What is ZW2? ZW2 is the depth of water table from the base of the footing. Base of the footing से 1.3 है, तो ZW1 is 2.5, ZW2 is 1.3. Please calculate what is RW1 and RW2. करो प्लीज, करो खुद करो थोड़ा। व्हाट इज Rw1 एंड व्हाट इज Rw2, करो उसके बाद मैं करता हूं। करो प्लीज। व्हाट इज Rw1, व्हाट इज Rw2?
करो प्लीज। What is RW2? RW2 आंसर सा है, चलो just a minute. I was a little busy in some other work. Where is Sheetal has got 1 in both cases. Pratiksha has got 1.54 and 1. Let me see बेटा, करे सही है, गलत भी हो सकता, सही भी हो सकता। देखो इधर RW1 मेरा 1 आया। क्यों आया 1? मैं आपको बताता हूं। 0.5 into 1 plus ZW1 by D. 0.5 into 1 plus ZW1. ZW1 कितना है? 2.5 है। अच्छा, D कितना है? 1.2 है। 2.5 divided by 1.2 is 2. Near about 2 plus 1 is 3. 3 into 0.5 is 1.5. Greater than 1. Therefore, RW1 is 1. अगर से आपका आंसर 1 से भी ज्यादा आया तो उसको 1 ही ले लो। ओके, शीतल का RW1 तो राइट है। Pratiksha, you got 1.54 is the right answer beta, but it should not be more than 1. Whenever it is more than 1, you take it as 1 only. Keep it in your mind. Means the value of RW1 and RW2 should not be more than 1. It should be in between 0 and 1. It is reduction factor. Reduction factor बोलता हमको कम करना है। कम करना है मतलब 1 से ज्यादा वैल्यू नहीं ले सकते हम। ठीक है, तो RW1, even if you got 1.54, make it 1. Second is RW2. RW2 is 0.5 into 1 plus ZW2 by B. 0.5 into 1 plus ZW2 is 1.3 by B. B is width. Width is 2. 1.3 by 2. इसको simplify करो. So you will get 0.825. See, Bahirwade, where you made the mistake. Sheetal Bahirwade also made wrong. Pratiksha also made wrong. Please RW2 check करो। आप समझ में आया क्या? देखो फॉर्मूला देखो। What is RW2? 0.5 into 0.5 into 0.5 into 1 plus ZW2 by B. Okay, Sheetal. Now it is right. Right, beta. 0.825. समझ में आया आपको? What is RW1 and RW2? RW1 is how much and RW2? RW1 is 1 and RW2 is 0.825. 825. Yes, Pratiksha, right. So now, after getting RW1 and RW2, you substitute here. Okay, beta. RV got factor of safety 3.6. Okay, let me check. Yes, it is right. अब सवाल यहां पर ये आता है, यहां सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। RW1 RW2 आया सही है, लेकिन गामा क्या लेना चाहिए? अब सवाल ये उठता कि गामा क्या लेना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। देखिए, गामा जो फर्स्ट केस में है ना, उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये टोटली ड्राई है सरचार्ज केस के लिए, तो वहां तो मैं 16.8 लूंगा। लेकिन सेकेंड केस में क्या है मालूम है? पूरा मतलब इसका ब्रेड्थ 2 मीटर है, 2 मीटर तक पानी नहीं है। पानी 1.3 तक ड्राई है, उसके नीचे 0.7 तक वेट है। तो ये हम आपको गामा एवरेज निकालना पड़ेगा। आपको गामा एवरेज निकालना पड़ेगा। गामा एवरेज मैं कैसा निकाल रहा हूं, प्लीज देखो। ये आज आपको पूरी तरह समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं। गामा एवरेज कैसा निकालता हूं, देखिए सेकंड केस में, फर्स्ट केस में तो टोटली ड्राई है तो 16.8 है। सेकंड केस में 1.3 तक ड्राई है, 0.7 तक वेट है। तो मैं ऐसा निकालता हूं 16.8 इंटू 1.3 ड्राई, 19.5 इंटू 0.7 वेट, और टोटल वेट डेप्थ है 1.3 प्लस 0.7, 17.75 इज द गामा एवरेज। 17.75 is the gamma average. So now the substitution becomes 49.68 into gamma into RW1, 42.4 into gamma W into RW2. Gamma is here 16.8, gamma W is 70, average is 17.7, and RW1 is 1 here, RW2 is 0.825. You see, if you substitute these things,
QF is equal to 1455.5 kilonewton per meter square, and factor of safety is QF by QA, 1455.5 by 400, it is 3.64. Ari has got the right answer. Please check करो, कुछ डाउट है तो पूछो. बहुत से लोग तो सुन ही नहीं रहे हैं, कर उनका उनके साथ, लेकिन जो समझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बैर बड़े और प्रतीक्षा, प्लीज check it once again and tell me whether you follow. कुछ डाउट है तो पूछो. Clear? 3.64 is the right. Any doubts, anybody? Okay, RV has got. So clear है ना? तो यहाँ पर आपको केस देख के डिसाइड करना है कि RW1 कैसा निकालना, RW2 कैसा निकालना और गामा कैसा लेना. Gamma average. Okay, Pawar, I will tell you. Pawar is asking, sir, how you have taken the gamma average. देखो बेटा, यहाँ पर दो केस है. ये यहां पर एक गामा हम अप्लाई कर रहे हैं, यहां पर एक गामा अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है. यहां पर देखिए, सेकंड केस सरचार्ज की वजह से रहता. इसको अच्छी तरह सुनो प्लीज. सरचार्ज मतलब सरचार्ज का जो सॉइल रहता, ये फुटिंग के ऊपर रहता. और यहाँ फुटिंग के ऊपर जो सॉइल है, यहां पर वाटर आया क्या? वाटर टेबल नहीं आया. देखो, वाटर टेबल बहुत दूर है, तो यहां पर वाटर टेबल ड्राई है. इसलिए सेकंड केस में हम गामा ड्राई लेते, 16.8 लेते. सेकेंड केस में हम क्या लेते? 16.8 लेते. ये तो क्लियर है आपको, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. लेकिन जब हम थर्ड केस में लेते, हम वेज की वजह से लेते. और वो वेज कहां तक रहता? इसका जो विड्थ रहता है ना हमारे फुटिंग का, उतने डेप्थ तक लेना. विड्थ ऑफ फुटिंग 2 मीटर है, तो 2 मीटर तक का हम डेप्थ देखना. 2 मीटर में 1.3 जो है ड्राई है और 0.7 जो है वो पानी में है. समझ में आ रहा? तो हम गामा ना ड्राई ले सकते ना पूरा सैचुरेटेड ले सकते, हमको एवरेज लेना पड़ेगा. कितना ड्राई है? 1.3 ड्राई है, 0.7 पानी में है. तो एवरेज कैसा निकालते हैं हम? 1.3 के लिए ड्राई ले लो, दैट इज 16.8 इंटू 1.3, और
0.7 के लिए सैचुरेटेड ले लो, 0.7 into 19.5 डिवाइडेड बाय टोटल डेप्थ दैट इज 1.3 प्लस 0.7, इसको सिंप्लीफाई करो दैट इज 17.75। इस तरह आप निकाल के यहां पर सब्स्टिट्यूट करो। तो दिस बुक इज सॉल्व्ड इन द आई मीन पुनिया बुक, ये सेम प्रॉब्लम, बट वहां ऐसा डिटेल में नहीं किए सो है, सब डायरेक्ट लेता, इसलिए मैं आपको एक प्रॉब्लम डिटेल में करा रहा हूं, कल सब अलग अलग केसेस के और प्रॉब्लम कराऊंगा। तो उसके बाद यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज हियर, 16.8 हियर बिकॉज दिस पोर्शन इज ड्राई, और 1 Rw1 इज 1, यहां पर मैं 17.75 इसीलिए लिया हूं क्योंकि ए एवरेज था, और ये है 0.825, Rw2 इज 0.825 क्योंकि हम निकाले। ओके आरवी, यू आर गोइंग फास्ट बट आई एम वेरी हैप्पी, एटलीस्ट यू अंडरस्टूड, यू आर डूइंग इट। अच्छा ये तो करो, कम से कम खुद तो पढ़ो, खुद तो, मुझे आप क्लास को आना जरूरत नहीं है, आप अगर से खुद पढ़ के कर सकते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे क्या जरूरत है, मुझे मेरी सैलरी मिले तो बस है, तुम पढ़ो, खुद पढ़ो। अरे मुझे सैलरी इसलिए मिलती कि मैं आपको पढ़ा सकूं, और तुम ओवर स्मार्ट बन रहे, तुम क्लास ही अटेंड नहीं करते, कहां से समझ में आता, इतना समझाने के बाद जल्दी समझ में नहीं आता। हाउ कैन यू स्टडी योरसेल्फ ऑन ऑल दीज थिंग्स, एक तो ऑनलाइन है, ऊपर से चिल्ला चिल्ला के बस होता हमको। Okay, now you take a break of 2-3 minutes and then I will go for next case.